अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए जानते हैं आज की अहम खबरें। श्रीकाकुलम के जिले पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मिस्टर ए विजय कुमार ने एक बयान में बताया कि APSRTC हैवी ड्राइविंग स्कूल का 15वां बैच 20 तारीख को श्रीकाकुलम में शुरू हो रहा है। आने वाले दिनों में RTC में ड्राइवरों की तरबियत के अलावा रियासत में हुकूमत ने हाल ही में अहकाम जारी किए हैं कि हैवी लाइसेंस की 5 साल में एक बार तजदीद करते हुए एक रोजा तरबियती सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्टर शशांक गोयल IAS इंस्टीट्यूट के DG तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताई तकरीब में वियतनाम के मीडिया प्रोफेशनल से खिताब करते हुए वियतनाम के मीडिया प्रोफेशनल डॉक्टर शशांक गोयल IAS इंस्टीट्यूट के DG और हुकूमत के SPLCS के साथ नजर आ रहे हैं। श्रीकाकुलम हल्का तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज साबिक MLA गुंडालक्ष्मी देवी सेवाग्राम नंदोगारा मंडल तेलुगु यूथ सदर माला नरसिंगा राव की सालगिरह के तकरीबात अरसावली में शानदार तरीके से मनाएंगे। Aku sarap. जहीराबाद पार्लियामेंट इंतखाबात का जायजा इजलास एला रेड्डी हल्के के MLA मदन मोहन गारू ने आज तेलंगाना के रियासती वजीर सेहत दामोदर राजना सिम्हा के सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक्कदा कांग्रेस पार्टी जहीराबाद पार्लियामेंट के इंतखाबी जायजा इजलास में शिरकत की। हल्का श्रीकाकुलम तेलुगु देशम पार्टी के यूथ कायदीन गोंडू शंकर ने कहा, इंतखाबी जवाबित नाफिज होने के बाद रेत की स्मगलिंग आजादाना तौर पर जारी है और ओहदेदार आमिराना तर्ज हुक्मरानी की तरफ झुक रहे हैं और अवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तकरीबन 100 मुकामी लोगों और कारकुनों ने श्रीकाकुलम जिले के गाड़ा मंडल में ब्यूरावली में रेत के गैर कानूनी रैंप का मायना किया। అందరికీ నమస్కారం। 2 రోజుల కిందట ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చినప్పటికి కూడా ఇక్కడ వంశధార నది బోరవల్లి గ్రామం పేరుకే నదిలో 2 కిలోమీటర్ల లోపల మంచి నేషనల్ హైవే తలపించిన రోడ్లేసి దగ్గర 50 టన్నులు బరువు వెళ్ళిన లారీలు కూడా ఈ దర్జాగా నదిలో వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే రోడ్డు ఎంత స్ట్రాంగ్ చేశారో అర్థం చేసుకోవచ్చు। నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి యథేచ్ఛగా ఇక్కడ ఇసుక దోపిడీ జరుగుతుంది। ఈ సందర్భంగా నేను జిల్లాలో ఉన్న అధికారులకి అడుగుతున్నా, మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఎలక్షన్ కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీరందరికీ ఇండివిజువల్ పవర్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ఎవరు నోరు మెదపకుండా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఏకమయ్యి కాముగా టక్కు పెట్టేసినట్టు ఇలా ఉండడం ఎంతవరకు సమంజసం? ప్రజాధనం కోట్లాది రూపాయలు, రోజుకి 260, 270, 300 లారీలు యథేచ్ఛగా చూడండి। ఇదేదో ఎల్లోరా ఆ గుహల్లో ఉన్నట్టు, ఆ కొండల్లో కనిపించినట్టు గడికలేనండి చూడండి। ఈ పొరలు ప్రొక్లేన్ ఇందులో మునిగిపోయింది। పెద్ద పెద్ద రొయ్యల చెరువులు తలపించే చెరువులు నదిలో 2 కిలోమీటర్ల మేర ఇక్కడ రోడ్డు లోపలేసి ఇంత యథేచ్ఛగా ఇసుక దందా జరుగుతుంటే అధికారులు ఏం చేస్తున్నారని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా। నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నిబంధనలు తొంగలో తొక్కి ఇంత దారుణంగా నదిని తవ్వితే రేపు వరదలు వస్తే నదులు డైరెక్షన్ మారిపోయే పరిస్థితి ఉంది। మొత్తం బోరు బావులన్నీ అడుగంటిపోయాయి।
ఒక్క బోరు కూడా నీరు రాని పరిస్థితి, పావు గంట కూడా రాకుండా తెగిపోతున్నాయి బోర్లు. నీరు తాగడానికి చాలా ఇబ్బంది నదీ ప్రాంత ప్రజలకి. మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇదే పరిస్థితి. మీకు ఉదాహరణకి దాదాపు నదిలో 2 కిలోమీటర్ల మేర మీరు వేశారు. 2 కిలోమీటర్ల మేర అంటే దాదాపు 3-4 క్వారీలు బౌండరీలు మీరు దాటారు. ఏ బౌండరీ వచ్చినట్టు ఇది? కరజాడ, బైరే, మడపామ, యువతల బోరవల్ల, అవతల పోతయ్య వలస, అంబల వలస, గోపాలపేంట 2 కిలోమీటర్ల మేర మీరు నదిలో రోడ్లు వేసి ఇక్కడ ఎడారులు, గుహలు, పెద్ద పెద్ద గుహలు, కొండలు తలపించినట్టు మీరు ఏదో గ్రానైట్ తవ్వకాలు జరుగుతున్నట్టు, భూగర్భ గ్రానైట్ జరుగుతున్నట్టు. ఇదిగోండి ఇక్కడ ప్రొక్లైన్ కూడా మునిగిపోయే పరిస్థితి. ప్రొక్లైన్ కూడా మునిగిపోయింది ఈ నదిలో. రేపు వర్షం వస్తే ఇవన్నీ ఇలాగే ఉండిపోతాయి వరదలు వస్తే. అలాంటి పొజిషన్లో ఇక్కడే 3, 4, 5, 6, 7, 8 దాదాపు 8 ప్రొక్లైన్లు, పెద్ద పెద్ద ప్రొక్లైన్లు. అది కూడా ఒక బకెట్ వేస్తే లారీ నిండిపోయినంత ప్రొక్లైన్లు పెట్టి ఇంత యథేచ్ఛగా ఇసుక తవ్వకాలు జరుగుతుంటే అధికారులు చోద్యం చూస్తూ ఊరుకోవడం ఏంటని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. దీనిపైన ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించుకుంటే రేపు ఎలక్షన్ కమిషన్కి మేము తక్షణమే ఫిర్యాదు చేస్తాం. అలాగే కోర్టులకు కూడా వెళ్తామని కూడా మేము తెలియజేస్తూ, ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే ఊరుకునేది లేదు, మేము ఎంతటికైనా పోరాడతామని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. मैं पार्टी नहीं बदल रहा हूं, जहरीले झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करें, साबिक वजीर एराबल्ली दयाकर राव मीडिया से बात करते हुए. ఒక రౌతు మారేస్తారు బీజేపీ వాళ్ళైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళైనా, అనేది తప్పులేదు. నా మీద కూడా ఇవాళ ఉదయం నుంచి అదే మోగుతాను. నేను పార్టీ వదిలిపెట్టే ముచ్చటే లేదు, ఈ పార్టీని కాపాడుతున్నందుకే సిద్ధంగా ఉన్నా. ఏ పార్టీలో పోయే ముచ్చటే లేదు. క్లియర్గా చెప్తున్నాం, టీఆర్ఎస్ పార్టీనే మళ్ళా అధికారాన్ని, బీఆర్ఎస్ పార్టీని అధికారాన్ని తీసుకొచ్చేందుకే ముందడబడి పనిచేస్తా. కార్యకర్తలకు ఈ కష్టకాలం నేను ఎన్నో చూశాను. ప్రతిపక్షంగా చాలా మంది ప్రతిపక్ష ముఖ్యమంత్రులు కూడా చూశాను, చాలా మందిని ఎదుర్కొన్నాను. నన్ను రాజశేఖర రెడ్డి ఎంత ఇబ్బంది పెట్టిందో మీకు తెలియదా? నా వర్ధన్నపేటను నువ్వు రాకపోతే ఎస్సీ రిజర్వేషన్ చేస్తాను, నీకు ఎక్కడ నిలబడకుండా చేస్తాను. పోతామయ్యా, నేను పోలే. ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు నన్ను ఉదయం ప్రయత్నం చేశాను, ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఉదయం ప్రయత్నం చేశాను, నేను పోలే. మళ్ళీ నేను పాలకుర్తి ప్రజలు నన్ను గెలిపించి 3 సార్లు. ఎన్ని ఇబ్బందులు వాళ్ళు ఫోన్ చేసినా, ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా రాష్ట్రం కానీ కేంద్రం కానీ పోయే ముచ్చట్లేదు. బీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండి కార్యకర్తలకు అండదండలు ఉంటారు. रियासती वजीर बराए तिब्बी सेहत, खानदानी बहबूद और साइंस और टेक्नोलॉजी दामोदर राजना सिम्हा ने हैदराबाद में अपने कैंप ऑफिस में जहीराबाद पार्लिमानी हलके के सतह की कांग्रेस पार्टी के अवामी नुमाइंदों, असेंबली हलके के इंचार्जों और पार्टी के अहम कायदीन के साथ मीटिंग की. टोटल 7 काउंट కావాలా? मारूफ अमेरिकी साइंसदान ने इस्लाम कबूल कर लिया. बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हेनरी क्लासन ने रमजानुल मुबारक का पहला रोजा भी रखा, नमाज तरावी भी अदा की और जल्द ही उम्रा अदायगी के लिए रवाना होंगे. वाशिंगटन. बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अमेरिकी साइंसदान प्रोफेसर हेनरी क्लासन ने इस्लाम कबूल कर लिया. बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हेनरी क्लासन ने रमजानुल मुबारक का पहला रोजा भी रखा, नमाज तरावी भी अदा की और जल्द ही उम्रा अदायगी के लिए रवाना होंगे. गुलमोहर पार्क के पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल भरने के लिए आने वाले कार के मुसाफिरों की कार को आग लग गई. ये वाकया गच्चीबावली से लिंगमपल्ली की तरफ जाते हुए पेश आया. पेट्रोल स्टेशन के अमले और मुकामी लोगों ने इत्तला दी और आग पर काबू पा लिया गया.
रियासत की दारुल हुकूमत हैदराबाद और तेलंगाना के अजला में बारिश। मंगल की सुबह बारिश हुई। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई। मंगल की सुबह सईदाबाद, चंपापेट, सरूनगर, मादनापेट और मलकपेट इलाकों, दिलसुख नगर, चैतन्यपुरी, करमन घाट, वसंतलीपुरम, एलबी नगर, हयात नगर, चार मीनार, कोटी और दीगर कई मुकामात पर बारिश हुई। अजला, कामारेड्डी, संगारेड्डी और निजामाबाद में भी मूसलाधार बारिश हुई। करीमनगर जिले के तेगालगट्टा पल्ली से ताल्लुक रखने वाले विजय कुमार, जिनकी उम्र 33 साल थी, इतवार की शाम पेदापल्ली जिले के ओवेडला मंडल के हरिपुरम में एक दोस्त की शादी की दावत में शिरकत के लिए आए थे। जानने वाले दोस्त की शादी की बारात चल रही थी और इसने भी दोस्त की फरमाइश पर इस तकरीब में शिरकत की। घंटों रक्स करते हुए वो अचानक गिर गए। रात में मौजूद मुकामी लोग इसे फौरन तौर पर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हो चुकी है। एवेडैम के डायरेक्टर प्रकाश रेड्डी ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड टीमें और शुमारियात की निगरानी करने वाली टीमों को न सिर्फ इन्हें तख्वीफ करदा इंतखाबी फराइज को सही तरीके से अंजाम देना चाहिए, बल्कि इन्हें चौकन्ना भी रहना चाहिए। पार्लिमानी इंतखाबात के एजाज में मंगल को जीएचएमसी हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में फ्लाइंग स्क्वाड और शुमारियात की निगरानी करने वाली टीमों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जिला नलगुंडा के मरियालगुड़ा में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान भारी मिकदार में सोना जब्त किया गया। एडोला गोड़ा चौराहे के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान मरियालगुड़ा टाउन से कोदाड़ की समेत जाने वाली बुलेरो गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी से 5.73 करोड़ रुपये मालियती सोना बरामद हुआ। निरंजन टीपीसीसी के सीनियर नायब सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी भवन में कहा, मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोला है। मोदी ने जगतियाल में मुनक़दा मीटिंग में मजहबी मसाइल पर बात की और जगतियाल में जो बात कही वो इंतखाबी ज़ाब्ते के खिलाफ है। हम इन मामलात पर इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। साबिक वजीर सत्यवती राठौड़, साबिक एमएलए गोंकेडी सुनीता हरिहरिया नायक प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा, एमएलसी कलवाकुंटला कविता की गिरफ्तारी खालिसतन सियासी बदनीयती की वजह से हुई है। बीजेपी ने यहाँ केसीआर और दिल्ली में केजरीवाल को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की साजिश की है। शराब पॉलिसी केस में असेंबली इंतखाबात से कबल गवाह रहने वाली कविता को पार्लिमानी इंतखाबात से कबल मुलजिम बनाना सियासी साजिश का हिस्सा है। इस मामले में कविता सिर्फ मुतासिरा है, मुलजिम नहीं। इन्होंने वादा किया कि अगर वो इनके सामने हथियार डाल देते हैं तो वो ससोडिया को दिल्ली में वजीर आला बनाएंगे। ये बात ससोडिया ने खुद कही है। रोजिया जॉन मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सिकनाग खान साहब ने मंगल को बडगाम के जानशीब एरिया में मुख्तलिफ स्कूलों में स्पोर्ट किट्स तकसीम किया और तकसीम की तकरीब का इनेकाद यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स टीचर्स की मौजूदगी में किया गया। स्पोर्ट किट्स की इस तकसीम का मकसद खेलों की सरगर्मियों में मुकामी नौजवानों की फाल शिरकत की हौसला अफजाई करना और इनकी सलाहियतों को तलाश करना है। माध्यम से डीडीसी मैडम जो है, डीडीसी सुखनाग जो है, रोजिया जान, इनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये वक्फन फ़वक्फन हमारे जो मसाइल होते हैं हमारे स्कूलों के, खासकर सुखनाग ब्लॉक के जितने भी मसले मसाइल होते हैं स्कूलों की, ये कोशिश इसकी हमेशा रहती है कि इन मसले मसाइल को हल किया जाए। आज का जो इनका जो दौरा था, आज के इस दौरे में इन्होंने वॉलीबॉल के तमाम जो इक्विपमेंट्स है, चाहे उसमें पोल है, वॉलीबॉल है, नेट है या यूनिफॉर्म्स है, वो इसने प्रोवाइड किए। तो हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी हमेशा कोशिश करते रहते हैं इन चीज़ों को प्रोवाइड करने की, लेकिन जो इनका अपना डेवलपमेंट फंड था डीडीसी मैडम का, इन्होंने अपने डेवलपमेंट फंड से मिडिल स्कूल आलमगसू या मिडिल स्कूल वाचू जो था या हाई स्कूल ज़ानीगाम था, तो इन तीनों जगहों पे आज इस मैडम का दौरा रहा और तीनों जगहों पे इसने वॉलीबॉल किट्स प्रोवाइड किए, पोल प्रोवाइड किए, इसके अलावा इन्होंने यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड किए और हमेशा इनका योगदान रहा स्पोर्ट्स को लेके। मैडम ने जहाँ पे ये स्पोर्ट्स किट्स जहाँ पे इसने प्रोवाइड किए, ये खाली स्कूली बच्चों के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पे जो लोकल थे मिडिल स्कूल वाचू के बच्चे के अलावा जो वहाँ के गाँव के जो लोग थे उनके लिए भी इसने यूनिफॉर्म्स वगैरह स्पोर्ट्स किट्स प्रोवाइड किए। और साथ साथ में जैसे ज़ानीगाम आप देखेंगे या आलमगसू देखेंगे, इससे फ़ायदा सिर्फ स्कूली बच्चों को नहीं, बल्कि जो लोकल उस गाँव के रहने वाले, चाहे ज़ानीगाम के है, आलमगसू के है, वाचू के है, जो लोकल है वहाँ के, उनको भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि ड्रग्स के रेट दिन ब दिन आप देख रहे हो कि
काफ़ी हद तक है, लेकिन कोशिश है कि यही एक स्पोर्ट्स है, यही एक मतलब हथियार है ड्रग्स को रोकने का, वो है स्पोर्ट्स। तो मैडम की यही कोशिश है कि बच्चे जो है खेल कूद के साथ मशगूल रहे, इनका सेहत भी ठीक रहे, इनका नशोनुमा भी ठीक रहे, इनका मेंटल। सर आप अगर आप देखेंगे 2014 को या 2015 को आप लेंगे तब की जो ड्रग्स की रेट थी काफ़ी हाई थी, लेकिन अगर आज के डेट में अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स कल्चर घर घर में है, स्पोर्ट्स कल्चर हर जगह पे है। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा वाहिद हथियार है जो ड्रग्स को दूर कर सकता है, जो बच्चों से ड्रग्स को दूर कर सकता है। स्पोर्ट्स ही वो वाहिद हथियार है जो बच्चों को या नौजवानों को तंदुरुस्त रखने में एक अहम रोल है स्पोर्ट्स का ही। और हमें मेरी यही मैसेज है, जितने भी हमारी वादी कश्मीर के जितने भी हमारे होनहार नौजवान हैं या हमारे बच्चे हैं या मेरे भाई हैं, उनसे मेरी यही एक इल्तिजा रहेगी, यही एक रिक्वेस्ट रही कि ड्रग्स से आप दूर रहिए, अपने आप को बचाइए। कश्मीर के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये ड्रग्स एक ऐसी लानत है कि जो पूरे माशरे को तबाह व बर्बाद करके रखती है। और हमारी यही एक मैसेज है कि इस चीज़ से दूर रहे, स्पोर्ट्स की तरफ आए। हमारी कोशिश है, जितने भी आप देखेंगे चाहे कहीं पे भी फिजिकल टीचर है या रहबर खेल जहाँ कहीं भी है, खासकर मैं रहबर खेल का आपको बोलूँगा, रहबर खेल का मुद्दा मकसद यही है। जब से रहबर खेल गवर्नमेंट ने लाया, तब से आप देखोगे स्पोर्ट्स कल्चर घर घर पे पहुँचा है। और ड्रग्स को अगर कंट्रोल करने में किसी का रोल है, वो है रहबर खेल का रोल है। रहबर खेल ही ड्रग्स को कंट्रोल कर रही है, रहबर खेल ही यहाँ के नौजवान को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने में यहाँ के रहबर खेल का ही रोल है। यहाँ का नौजवान, अगर आज आप देखेंगे ना, यहाँ के नौजवान का हर दिन आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं एशियन मेडल में, कहीं नेशनल मेडल में, कहीं कोई ना कहीं चैंपियनशिप्स में, जहाँ कहीं हमारे नौजवानों का रोल है, वो सारी देन जो है वो रहबर खेल की है। रहबर खेल की ही कोशिश है कि यहाँ के नौजवान इस ड्रग से दूर रहे और यहाँ का नौजवान नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बन जाए। यही गोंटी विक्रम यादव ने गांधी भवन में तेलंगाना प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन जल्याला चन्ना रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। श्रीसेल्लम यादव बाइक, श्रीसेल्लम यादव गोंटी, राहुल यादव, सलमान राजप्रेम, पद्माव राव प्रसाद, जगन्नाथ विनय और दीगर ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को योगा गुरुग्राम देव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्णा को कंपनी के मसनूआत के इश्तिहारात और इनकी दवाओं की अफादियत से मुताल्लिक तौहीन अदालत की कार्रवाई में जाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसनुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कंपनी और बालकृष्ण की जानिब से पहले जारी किए गए अदालती नोटिस का जवाब दाखिल करने में नाकामी पर सख्त इस्तिस्ना लिया, ताकि ये जाहिर किया जा सके कि इनके खिलाफ दिए गए मायदे के खिलाफ वर्जी पर पहली नजर में तौहीन अदालत की गई थी। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।